Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 4th June 9:20 p.m. and today we are back with Bank Nifty's daily analysis, outlook and prediction for tomorrow, which is 5th June, right? And today was the day when election results are out, right? And I think on Saturday or Sunday there were exit polls results, and the picture we are seeing now it's completely different from what we saw in exit polls. एंड मतलब क्या मैं बोलूँ, आज जो फॉल देखा, मतलब मैं सिर्फ स्ट्राइक प्राइसेस शिफ्ट करता गया नीचे की तरफ कॉल सेल में। मैं चालू किया निफ्टी में कॉल सेल, फिर बैंक निफ्टी में किया तो एक कॉल शॉर्ट किया, फिर उसके बाद उसको हटाया, फिर उसके और इन द मनी आ गया, वो कॉल शॉर्ट किया। मतलब आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया कॉल शॉर्ट रोल ओवर करते में। एंड आज हमारे ग्रुप ने भी ठीक ठाक हमने गाइडेंस दी, एक कॉल शॉट दिया था 600 पे अराउंड। टेलीग्राम ग्रुप में देख ही लेते हैं ना सीधा। सो देखो, एजेंडा यही रहेगा वीडियो का कि विल डिस्कस व्हाट वी डिस्कस, विल सॉ दैट व्हाट वी डिस्कस्ड इन मॉर्निंग इन टेलीग्राम ग्रुप, what view we gave, right? And what is our expectations from Bank Nifty for tomorrow, right? So without consuming more time right here, we'll straight go to our Bank Nifty group, right? Bank Nifty, sorry, Telegram group, right? So morning I gave an update at around 8 o'clock, right? At that time gift nifty was showing around 60 to 70 points gap up, so I posted this at that time, but this was irrelevant since you know, just between 8 o'clock and 9 o'clock, I think we were showing a 200 point gap down, right? So after 200 point gap down, I clearly mentioned that completely opposite picture, and we need to review, like revise our strategy, review our strategy. So I mentioned since it's a gap down, let's wait and observe first hour, thinking to trade in second half. So if you go and you look, as soon as the market opened gap down, it was a waterfall and we didn't get an entry, but we gave a trade, right, around I think 943. And 943, if you go and look, it will be around this point. So I did not give a trade in this fall, right, because it can reverse, right, as usual, as most of the time it does. It can reverse, it can halt here, and it can go up. So I did not give a trade here. I gave a trade after a dead cat bounce. I gave a trade here. If you perfectly, if you go and see, right, I gave our members in our Telegram group a call short, right, 50,000 call short and 50,000 for hedge. So we shorted this at around 60, 600, right, and uh, working perfectly. We posted this message around I think 10:45 p.m. 10:45 a.m. and I think sold at 600, now at 300 book profits. So we gave a call short in Bank Nifty and we booked our profits roughly at 300. So it was a good day, right? And then I gave my day summary as I think we are done, no major moves, right? I think if you are someone new who is watching our video, you should definitely join our Telegram group. We give daily updates here, market insights, analysis on option interest data. So this was our Telegram group discussion, and I even mentioned that if you are in shorts, exit, stay on profit. This is a message at 12:54 p.m. So if I'll make you see 12:54 p.m. candlestick, 12:54, 12:54 it is, or what it is. Yeah, 12:54. If your profits, exit or stay, exit the shorts or stay in profits. To 12:54, if you go and see, this was this candle, this candlestick, right? So from this point, market was in strong uptrend, right? Like it's a bounce only, we can say, but yeah, it was a good exit, right? And 12:14 we posted lower circuit in Bank Nifty because at that point Bank Nifty was showing around 9% down. And if you go and see, Nifty is 1300 points down. If you go and see, Bank Nifty is 4000 points down. I do not remember the last time I saw such markets because I have been trading in markets from 2021, and after 2021 it's the biggest, I think, intraday fall. If I'll make you see, right, I'll make you see on this charts, right? So this was our Telegram group discussion. Already have consumed 4 minutes, so let's quickly go and discuss what we expect from Bank Nifty for tomorrow, right? So first we'll go to our daily charts. So daily, right, after I think 2021 COVID fall, this is biggest daily intraday fall of around if you calculate the top, right, 50,007
10, from this point market fell till 46,100. So almost around 5,000 points you can calculate, and it is biggest intraday fall which I've ever seen in past 3 years, right? So the reason is exit polls. The main reason of this fall is everybody will come and say to you that, oh, exit polls did not match with the real results, election results. But what I will say is the bank nifty, the current valuation of nifty 50 was so high that it could not sustain such high levels, and people who have invested who had invested at the times of 2020, 2021, 2022, they will at least book some profits at some place, right? Where will they book? This was the best point where they could have booked their profits, and same it happened, correct? Many people will say, yes, of course it was a catalyst in the downfall, but the real downfall was due to heavy huge valuations in the markets, right? So this was the main reason, and second reason was the real election result were not aligned with the exit polls which were there, right? सो एग्जिट पोल बोल के इन्होंने कल तो 8 मतलब मार्केट को 5% 4% ऊपर करा दिया, और आज कल माल इन्होंने चिपकाया और आज पूरा सूप समेत मार्केट से वापस ले लिया। तो अब चलते हैं सीधा कि कल के लिए क्या हमें इंट्राडे स्ट्रैटेजी रखनी है, क्या डिस्कशन हम कर सकते हैं, what level should we mark for tomorrow, right? It's already 6 minutes, right? I'm trying to keep my videos below 10 minutes so you do not have to spend much time in for tomorrow's strategy, right? And so weekly, once I'll make you see, right? Weekly also it's a single day biggest fall after 2020, right? I hope you have not seen such a big candlestick. जो भी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक आफ्टर 2021 उन्होंने इतनी बड़ी कैंडलस्टिक तो इंट्राडे नहीं देखी होगी, राइट? सो I have uploaded weekly and monthly outlook for Nifty and Bank Nifty for June, right? This Saturday I'll attach a link to that video at the end of the video, and even I think और इस वीडियो के बीच में भी यहाँ मैं एक ऊपर वीडियो का लिंक अटैच करके दे दूंगा, राइट? ओके। सो वो वीडियो एक बार जाके देखना, उससे काफ़ी क्लैरिटी आएगी कि हमको जून के वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे क्या लेवल्स का हमें ध्यान रखना है, एंड अगर वो ब्रीच होते हैं किसी भी साइड तो हमें क्या ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है, राइट? सो अब सीधा चलते हैं आप 15 मिनट्स में एंड सिनेरियो वाइज डिस्कस करते हैं। देखो, अब मार्केट, अगर आपका कल हमें कैसे मार्केट को अप्रोच करना है, राइट? देखो, हमारा जो रिचुअल है, सबसे पहले डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ कि डे हाई और डे लो बहुत क्रूशियल है, ये निकलते हैं तो अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। तो देखो, अब बुलिश आपको कब होना है, मैं आपको आर्ली पे लेके चलता हूँ। तो आर्ली में क्या है कि मैं, अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है तो मैं यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स एडिशन नहीं दूंगा, क्योंकि जो शॉर्ट होना था मार्केट हो चुका। फ्रेश शॉर्ट कब आएगा? जब इस रैली का एक एटलीस्ट 30 to 40% रिट्रेसमेंट आएगा यहाँ तक। सो दिस विल बी अ परफेक्ट प्लेस टू शॉर्ट अगेन द मार्केट, क्योंकि जो रियल ट्रेडर्स हैं, देखो बहुत ट्रेडर्स ने ये रैली मिस किया होगा, तो वो फॉर श्योर करेंगे, ट्राई करेंगे मार्केट को यहाँ तक लाने का, बट दैट विल बी अ स्लो move till here, and this will be like 50 to 40%. This will be a perfect place to short again the markets for a move like this. तो मैं कल फ्रेश शॉर्ट्स का एडिशन नहीं दूंगा, जो जिनके कैरी चल रहे हैं वो चलाएं अपने कैरी शॉर्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्रेश शॉर्ट्स का एडिशन यहाँ पे नहीं दिखता है मुझे, राइट? फर्स्ट थिंग कमिंग कि हम कल बेरिश कब हो सकते हैं, नेगेटिव ट्रेड कर ले सकते हैं। जो हमारा डे लो है, जो डे लो है 46,100 के नीचे आ रहा है, अगर कल ये डे लो ब्रीच होता है 46,100, तो आपको नीचे के लेवल्स, नीचे के साइड पे सबसे पहला लेवल आपको 46,000 दिख जाएगा, राइट? 46,000 टूटने के बाद आपको सेकंड लेवल मिलेगा, देखो 46,750, राइट? 750 के बाद 45,750। अगर 46,000 ब्रेक होता है ऑन द डाउन साइड तो 45,750, 45,750 ब्रेक होता है तो 45,500, 45,500 ब्रेक होता है। अगर आर्ली पे चलें, ये डेली पे थोड़ा सा चिपक रही है लाइंस एक दूसरे से, राइट? सो आर्ली पे देखो, एक बार मैं ये सारी लाइन है ना आपको डिलीट कर देता हूँ। देखो, डे लो अगर ब्रीच हो जाए आर्ली पे 46,100, तो पहला टारगेट 46,000 होगा, बट 46,000 46,100 में इतना डिफरेंस नहीं है, तो 45,750 आ जाएगा। 45,750 टूटेगा तो 45,500 विल बी आर नेक्स्ट टारगेट, एंड अगर वो भी ब्रीच होता है तो 45,000 अल्टीमेट फॉल। और 45,000 मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक मार्केट पॉज ले सकता है, क्योंकि मैं आपको देखो डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। मार्केट क्यों यहाँ पे फॉल दे सकता है, सिंपल एक रीज़न है। मार्केट देखो 45,000 अगर आप देखोगे तो 45,000 यहाँ का ये लो है, अगर डेली पे भी नहीं दिखेगा, एक बार वीकली पे चलते हैं, ये वीकली पे आ गए, ठीक है?
तो 45,000 एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है किसी भी इंडेक्स के लिए, अगर वो 50,000 55,000 ट्रेड कर रहा है। तो 45,000 मेरे लिए अगर मार्केट कल अचीव कर भी देता है तो मेरे लिए एक यहाँ पे शॉर्ट्स का बुकिंग होगा, यहाँ पे मूवमेंट आएगा यूं 47,000 एंड देन अगेन मार्केट विल ट्रैवल टुवर्ड्स दिस। अच्छा, यहाँ पे क्या एक कंडीशन आ रही है, ये तो हमने डाउन साइड की बात कर ली, यहाँ पे एक देखो क्या कंडीशन आ रहा है। अगर मैं आपको डेली पे लेके चलूँ ना, ये तो वीकली पे है, इफ़ वी गो एंड सी ऑन डेली चार्ट्स, राइट। सो हम ये बात कर रहे थे, क्यों मैं 45,000 बोल रहा हूँ आपको, इसलिए मैं बताता हूँ। ये एक चैनल की हम कितने टाइम से बात कर रहे थे, अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो तो आपको मालूम होगा, हमने बोला था ये चैनल एक बैंक निफ्टी में चल रहा है, और अगर ये चैनल टूटा बैंक निफ्टी में तो इसका किसी भी साइड टूटा तो इसका इक्वल लेंथ जो होता है ब्रेड, उतना मूव मिल सकता है। और ये आ रहा है देखो एग्जैक्टली 45,000 तक का इस चैनल का एंड, राइट। तो ये चैनल सिंस अब आज डेली क्लोज मिल गया और कल एक डेली क्लोज चाहिए हमें कंफर्मेशन कि ये चैनल यहाँ तक ट्रैवर्स हो सकता है, तो मार्केट प्रोबेबली कल देखो क्या दिखा सकता है। या तो मार्केट सिनेरियो वाइज डिस्कस करते हैं, 15 मिनट्स में चलते हैं, राइट। देखो आपको अब मार्केट ने हमें दो रेंज दे दी है, अपसाइड पे 48,100 का लेवल आपको टेक केयर करना है, क्योंकि आज पहला मार्केट ने रेजिस्टेंस वहीं से लिया था। अगर मार्केट फ्लैट या हल्का सा गैप अप खुलता है 60 to 80 पॉइंट्स और इस लेवल को निकालता है, इस लेवल को 48,100 को, तो इसके ऊपर सेकेंड लेवल हमें देखने को मिल सकता है 48,500, राइट। 48,500 हमें देखने को मिल सकता है, 48,500 भी निकलेगा जो कि मेरे हिसाब से फिर से एक रेजिस्टेंस का जोन काम करना चाहिए। 48,500 निकलता है तो 49,000 थर्ड लेवल में मिल सकता है। 49,000 49,500 भी एक बार अगर मैं मार्क कर लूँ यहाँ पे, तो 49,500 वुड बी एन आइडियल पोजिशन टू शॉर्ट अगेन इन द मार्केट्स। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 10-20 पॉइंट, तो मार्केट के पास देखो एक रेंज है अभी, अगर आप क्लियरली देखोगे मार्केट के पास क्या रेंज है, 48,100 एंड 46,100, तो ये 2,000 पॉइंट की रेंज है अगर मार्केट कल कुछ भी नहीं करता, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो फिर से ये लोग होगा कि प्रीमियम डे के खाएंगे, और विक्स इतना हाई है, प्रीमियम इतने हाई है, तो अगर आपको भाई एट द मनी पे आपको कंबाइंड 800 पॉइंट प्रीमियम मिल रहा है, तो कौन नहीं बेचेगा, कौन मार्केट को यूँ नहीं रखेगा, राइट। तो बट कल प्रोबेबली देखो आज इतना शार्प फॉल आया, अगर कल प्रीवियस डे लो निकलता है तो फिर हम एक और ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है प्रीवियस डे लो के नीचे, बट द कंडीशन इज प्रीवियस डे लो शुड ब्रेक एंड सस्टेन इन 15 मिनट्स, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर फ्लैट खुला मार्केट तो मार्केट ये एक साइडवेज मूव दिखा सकता है, अगर 46,001 ऑन द डाउन साइड ब्रेक होता है तो नीचे 45,000 हमें कल ही देखने को मिल सकता है, राइट। सो दिस इज टुमारोज स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे मार्केट्स, राइट। आई होप आप लोग को थोड़ा लेवल्स की क्लैरिटी आई हो, तो आपको आई मीन समझ में आया हो कि कैसे मार्केट को कल ट्रेड कर सकते हो। तो एक बार ओआई डेटा का भी एनालिसिस कर लेते हैं, राइट। मैं आपको ऑप्शन चेन एक बार खोल देता हूँ। तो ऑप्शन चेन से आपको एक जो हमने चार्ट्स पे डिस्कस किया उसका एक वैलिडेशन हो जाता है कि हाँ ऑप्शन डेटा में भी वहाँ पे क्या एक्चुअल में सपोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं, एंड मेरे हिसाब से और कोई क्रूशियल पॉइंट रह नहीं गया। मंथली में मैं आपको मंथली और वीकली का एनालिसिस का वीडियो अटैच कर दूंगा यहाँ पे लिंक पे, राइट। वीडियो के स्टार्टिंग में एंड इवन वीडियो के एंड पे, तो वो आप देखो जाके। क्योंकि मंथली में देखो हमें क्या दिख रहा है कि अगर मंथली एक क्लोज 5 के नीचे देता है तो मेरा फर्स्ट मंथली टारगेट भी 45,000 20 निकल के आ रहा है, नियर नियर वही टारगेट आ रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 45,000 बहुत क्रूशियल पॉइंट है, वहाँ तक मार्केट एक बार पुल करने आ ही सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है 45,000 तक। अभी मार्केट 47,200 बंद हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से 2,000 पॉइंट और नीचे ईजी मूव मुझे दिख रहा है, राइट। अगर आप वीकली पे जाओगे, वीकली पे देखोगे, वीकली पे देखो 45,000 अगर वीकली पे, ये वीकली क्लोज जाता है इसके नीचे, देखो वीकली में अब है हमारा 5 और 20 दोनों के नीचे। तो अब क्या हो सकता है, या तो कल एक अगर आप डेली में जाओगे तो कल क्या हो सकता है, जो प्रोबेबिलिटी बताती है कि ये एक हो सकता है बना दे इनसाइड कैंडल यहाँ पे, अगर हल्का सा गैप अप या 100 150 200 पॉइंट गैप खुलता है तो यहाँ पे एक ऐसी इनसाइड कैंडल, फिर कल भी एक ऐसी कैंडल, और जब ऐसी मान लो ये कैंडल, और फिर जब ये लो ब्रेक हो जाएगा 2-3 दिन में तो और एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। बट इस कैंडल स्टिक का कल ही में तुरंत ही 60 to 70% रिट्रेसमेंट नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो फिर जितने लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया सब ट्रैप हो जाएंगे, राइट। ओके, सो ये है कल की स्ट्रैटेजी, एंड ओवाई डेटा खुल गया, ओवाई डेटा देखते हैं। देखो ये आज का ओवाई डेटा है एंड मैसिव रेजिस्टेंस बना हुआ है 47,000 पे। तो मार्केट को अगर आपको देखना है तो 47,000 के ऊपर सस्टेन करना में बहुत डिफिकल्टी होगी, ठीक है। ये आज का डेटा है, ये चेंज इन ओआई है, अगर आप टोटल ओआई देखोगे तो 47,000 पे सपोर्ट भी बना हुआ है, राइट, टोटल है ओआई में। बट आज जो डेटा ऐड करके गए हैं लोग
11 लाख शॉट्स ऐड करके गए ऑन द साइड। ऑन द कॉन्ट्ररी सिर्फ जो बुलिश पोजीशन ऐड हुई है वो ऐड हुई है ऑलमोस्ट 2 lakhs की। तो विच इज़ वेरी बेरिश डेटा। पीसीआर भी काफ़ी लो चल रहा है चेंज के हिसाब से। एंड अगर आप देखोगे तो मेजर सपोर्ट अभी 47,000 पे है। तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर 47,000 के नीचे 46,750 या 46,800 पे मार्केट सस्टेन करता है तो ये जितने भी पुट राइटर्स है ये अनवाइंड करेंगे और आपको एक शार्प फॉल मिलेगा टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 46,500। नेक्स्ट सपोर्ट है ऑप्शन डेटा के हिसाब से 46,500। 46,500 भी टूटेगा, स्ट्रेट फॉल आपको मिलेगा 46,000, राइट। ऑन द अपसाइड 47,000 इन्होंने आज ओवाई चेन में रेजिस्टेंस बना के गए हैं, बट टोटल ओपन इंटरेस्ट में इतना ओवाई नहीं दिख रहा। अगर वही इसलिए बोल रहा हूँ कि 47,250 के ऊपर टिका तो 47,500 एंड आपको ये देखो 47,500 पे नेक्स्ट अच्छा रेजिस्टेंस है। इसलिए बोल रहा हूँ कि 47,100 कल निकला है, देखो चार्ट पे हमने ये डिस्कस किया था इंट्राडे में। अगर 47,100 या ये वाला लेवल निकलता है कल मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो वही 48,000 का मार्केट आपको लेवल दिखा सकता है, राइट। तो ये था हमारा कल का इंट्राडे डिस्कशन। आप आई होप आप लोग को थोड़ा लेवल्स में क्लैरिटी हो। मैं यहाँ पे लाके एक बार लेवल्स छोड़ देता हूँ ताकि आप क्लियरली मार्क कर लो कि कल के लिए क्या क्रूशियल लेवल्स रह सकते हैं। हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लिए। मैं सुबह एक बार ग्रुप में फिर से अपडेट कर दूंगा कि ये हमारी कल के लिए स्ट्रैटेजी है, तो आप इसको जाके ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो बस कल के लिए ध्यान रखना बुलिश थोड़ा सा जब भी होना जब मार्केट आपको 48,150 के ऊपर थोड़ा मूव दिखाए, सस्टेनेबल मूव दिखाए, 15 मिनट कैंडल सस्टेन हो, तो फिर आपको 48,500 एंड 48,750 देखने को मिल सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर प्रीवियस डे लो विच इज़ 46,000 ब्रेक होता है तो इजीली 45,000 आपको अचीवेबल होता हुआ दिखेगा। 45,000 पे आई विल प्रेफर बुकिंग शॉर्ट्स एंड सिट इन द मार्केट्स एंड जस्ट ऑब्जर्व, क्योंकि वो बहुत सारे टाइम फ्रेम्स के लिए सपोर्ट है, राइट। वो चैनल का भी सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है, करेक्ट। तो ये था कल का मार्केट बैंक निफ्टी का आउटलुक एनालिसिस, राइट। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो एक लाइक एंड कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, वीडियोस को सपोर्ट मिलेगा। इफ़ यू आर समवन न्यू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट। थैंक्स ट्रेडर्स, बी सेफ इन द मार्केट, राइट।